نبی الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بارك وسلم صلى وسلم عليه وعليهم أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. باتیں ہم نے بہت کی ہے پہلے سے، اب نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو عام اور خاص دو باتیں ہیں. تو خاص کے لیے ہے، عام کے لیے ہے. ہم کو سدھرنے کے لیے اور اللہ کی جو قانون ہے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بتائے ہیں، وہ ہے ظاہری شریعت. اور اس شریعت کو ہم طریقت میں لاتے ہیں، اس طریقے سے عمل کرنا تو کچھ اس کا حل نکلتا ہے، پھل نکلتا ہے. تو جیسے نماز آیا، جب پہلے نماز آیا عرش سے، سرکار دو علیہ وسلم معراج سے لے کر کے آئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تو یہ 5 وقت نماز بھیج دیا، پڑھا کیسے جائے گا؟ اب کہاں سے اللہ بولیں گے؟ تو آیا حدیث میں، حدیث ہے یا قرآن ہے، پڑھے تو ہے لیکن اب یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن کی بات ہے کہ حدیث کی بات ہے. عربی میں دونوں ہوتا ہے. عربی زبان نہیں ہے، ہم لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے عربی دیکھنا کہ قرآن ہی ہوگا. تو اس میں دیکھے ہم کہ لکھا تھا کہ جس طرح لوگ پوچھے جب صحابہ کرام کہ کس طرح پڑھا جائے، تو خبر آئی اوپر سے کہ جس طرح ہمارا محبوب کرتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قیام کیے تو قیام لوگ جانے، رکوع کیے، سجدہ کیے، قضا کیے. اس طریقے سے اب یہ بتایا گیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، پھر کوئی سورہ ملا کر کے، اور دھیرے دھیرے قانون اس کا بڑھتا گیا. پہلے تھا کہ سب کو تہجد فرض تھا، 2 رکعت نا، تو یہ فرض سب پڑھ رہے تھے، لیکن جب 5 وقت نماز آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف نبی کے لیے فرض رکھا، اور عام آدمی کے لیے، امتی کے لیے، عام آدمی تو ہم لوگ امتی نا ہیں، امتی کے لیے ڈھیل ہو گیا. اب وہ نفل ہو گیا اور یہ فرض ہو گیا کہ فرض نبھاؤ. فرض میں صبح میں 2 رکعت فرض ہے، اور دوپہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت ہے، عشاء میں 4 رکعت ہے. اب اس کے بعد سنت نوافل. تب میں ہم لوگوں کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جیسے بتائے اس طریقے سے یہ نماز قائم ہو گئی. اب اس میں بھی بہت سارے مسئلے آ گئے. 4 امام آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کیسے پڑھے، بیماری کا حالت میں کیسے پڑھیں گے، یہ سب آ گیا. تو پڑھتے پڑھتے جب آدمی شروع کرتا ہے تو بھائی تندرست ہے، تو اس طریقے سے بتانے والا ہمارے عالم ہم لوگوں میں ہوں یا جنات میں، ان لوگوں میں ہو، یہ سب بتایا جاتا ہے، اور لوگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹانے کے لیے جو اللہ کا دین تھا، تو نئے نئے دین کے بارے میں لوگ کہے کہ جیسے پرانا لوگ تھے پہلے مانتے تھے، اب چل گیا نسل، ایک رواج چل گئی
तो बाप दादा का दिन लगे कहने की आकर के छुड़ा रहे हैं, तो दुश्मन बन गए। हालांकि हक बात था, लोग भूल गए थे, लेकिन अपने को सच्चा दूसरे को झूठा मानने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी परेशानियां आई, जंगें हुई, फिर अल्लाह ताला दीन को कायम करवाया। जब दीन कायम हो गई तो मुसलमानों का गलबा हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि वो जंग असगर था, अब जंग अकबर आएगा। अब तो सब मानने वाले जानने वाले हो गए, मामलात देखते हुए। पहले था शराब भी पीते थे, नमाज भी पढ़ते थे, तो माहौल वही थी। तो एकाएक सब चीज़ को रोक देना, मसलहत के तहत रोकना, वो अच्छा है। तो मसलहत के तहत अल्लाह का हुक्म हो गया कि अब जब सब मानने लगे कि सरकार की जो बात है कोई नीचे गिरने नहीं देता है, लब्बैक करता है, तो बाद में आ गया कलम पाक में कि शराब हराम। तो सब ने फेंक दिया, क्योंकि हम चाहने वाले हो गए सरकार के। जो सरकार बोल रहे हैं, जो पीर बोले लब्बैक है। तो शराब हराम हो गई। अब आज तक हराम है, क़यामत तक हराम रहेगा। अब ऐसे कोई ज़बरदस्ती कोई काम करे तो बात अलग है, लेकिन हमारी कानून में तो आ गया, कलम पाक में आ गया, तो हमको हराम समझना ही है। इसके बाद जब कहे कि जंग अकबर अब लड़ना है, जंग असगर तो हो गई, तो सहाबा इकराम कहे कि या रसूलल्लाह, हम लोग उसमें अपना कुर्बानी दिए, शहीद हुए, अब इससे बड़ा भी कोई जंग है? हाँ, तो कहा कि हाँ है। वो है अपने नफ्स से लड़ना। अब नफ्स नहीं समझ में आता है। हर दुनिया का, हर जगह का हर अलग अलग भाषा है, और ये अलग, भाई अरबी बात अरबी जगह में है तो अरबी में सब बात आई है। तो हमारे हिंदुस्तानी ज़बान में उसको मन कहते हैं। अब इस मन पे काबू पाना। तो हमारे बहुत सारे भाई आज़ाद होकर आज भी गए हैं, और पहले भी गए हैं। अब हम लोगों को उस कायदे कानून पे आ जाना, उसका वादा निभाना। तो बहुत सारे तो भाई कहे कि इंशाअल्लाह जरूर हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, हाँ, और करेंगे भी। लेकिन बहुत सारे हैं कि अभी सोचेंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि समझ में बात नहीं आई है। तो असल जंग हमारा क्या है रे? असल जंग है अपने मन से लड़ना। और कैसे लड़ना, ये भी बात है कि भाई अपने मन से क्या लड़ाई है? नहीं, फ्रंट में कोई होगा तब ना उससे लड़ाई होगा, है? कि मन से कैसे लड़ेंगे, है कि नहीं? तो फ्रंट में क्या है? अल्लाह की कानून, शरीयत। तो उसके खिलाफ अगर हमारा मन कर रहा है कि नहीं करेंगे, हाँ, तो अब हम अपने मन को मनाएं कि नहीं, जो हमसे गलती हुई, जो भूल हुई, हाँ, जो नहीं बगैर जानकारी में काम हो गया, इस जानकारी में हमने बहुत सारी गलतियां की, आज़ाद थे, दीन मालूम भी नहीं था, बहुत सारी बातें आती हैं। तो इस बात को लेकर के तो अभी जब हम रास्ते में भटके हुए थे, अब उस रास्ते से अब निकल करके एक जगह मिल गया हमको कि नहीं,
तो नमाज तो सभी जानता है। तो नमाज पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज पढ़ता है, चोरी भी करता है, नमाज पढ़ता है, बहुत सारे काम गंदा करता है। हाँ, लेकिन अब मैं जो समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अब हमको इसको मनाना है। तो अपने मन की काम किए थे हम। हाँ, जो जी में आया, जो हमारी पावर है, ताकत है, उस ताकत से हमने किसी को सताया, किसी को दिल दुखाया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया, है ना। बहुत सारी बातें की ना जानकारी में। अब जानकारी हुआ कि नहीं ये गलत है, अल्लाह ने जो कहा है उस बात पे हम चलेंगे। तो उस बात पे अपने मन को हम कंट्रोल करेंगे, मनाएंगे कि नहीं, ये तो अगर मन हमारा कर रहा है कि नहीं ऐसा करे, तो अब ये हम सोच लें कि नहीं, हमारा अल्लाह जो है इससे नाराज़ है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो हम अपने मन का काम नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह की कानून को मान के वो काम करेंगे। इस बात पे हमारे पूरे जिन्नात बिरादरी को भी आना है। हाँ, ताकि जो हुआ पहले गलती हुआ, अब मौका मिला है एक सुधार का, अल्लाह वक्त देता है। हाँ, कि चलो एक बार फिर सुधार का रास्ता हम देते हैं। हाँ, तो जान लो, सुन लो और उस पर अमल करो। तो हमको अब अपने मन से ही लड़ना है कि नहीं, जो अल्लाह कहा है हम उस पर चलेंगे। तो जैसा हमारे लोगों में भी है, शरीयत है, लेकिन उसको ताक पे रख करके तबीयत पे चलते हैं। जो तबीयत में कर दिया, जो मन में आ गया वही। अब चल गया थोड़ा दिन तो रवाज हो गया कि सारे लोग तो कर रहे हैं। सब गलत है क्या? तो क्या अल्लाह का कानून भी गलत है? मदरसे में तो यही ना पढ़ाई होती है, इसको रोका जाए। हाँ, हदीस पढ़ते हैं लोग, कुरान कुछ पढ़ते हैं, हदीस ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, यही सब सीख करके इसका तकरीर करना चाहिए, क्योंकि तकरीर का भी लहजा बदल गया। बजाय सुधार का कोई एक बात वाक़या बयान करके उसकी तारीफ़ करके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद हो गया तकरीर। तो आदमी कुछ उसके बारे में सोचता है कि फलां बुजुर्ग है या फलाना आलिम है, फलाना मुहद्दिस है। हाँ, तो बड़ी अच्छी तालीम थी, बड़ी अच्छा है, बस कह करके वो तो हमारे अमल में है नहीं। फिर हम अपने ही रास्ते पर चल दिए। लेकिन अब जो तालीम अल्लाह दे रहा है कि हमारी सुधार हो कैसे, तो सब भाई को यही चाहिए कि नहीं, हम अपने आप को नियत बनाएं और इरादा करें कि नहीं, अब हम अल्लाह के कानून पर चलेंगे। भैया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरतुन नबी है। हाँ, जैसे जैसे किए, जैसे जैसे वो सब एक कानून बनता गया, वो शरीयत का, वो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों कानून पे खुद चले, बताए। और भी जो नहीं चलने पाए वो सब भी बताए कि अल्लाह ये चाहता है, ये चाहता है। तो इसकी हदीस भी बन गई। हाँ, तो अब जगह जगह का फ़र्क हो गया। वो 4 इमाम आ गए, कहीं सरकारी जंग में किसी तरह नमाज पढ़े, बीमार में किसी तरह पढ़े,
इसके किस्म का मतलब बहुत सारी बातें हैं। रह गया कि अल्लाह तंदुरुस्त रखा है, वो उसकी हम बात करते हैं, बाकी आलिम लोग बताएंगे। तो हम मन की बात बता रहे थे कि हम अपने मन को अल्लाह के कानून के तरफ लाए ताकि हमारी सुधार हो। अब इस मन को कैद करना कि नहीं, हम जो कानून शरीयत है उसमें अपने आप को बांधेंगे। तो बाप दादा वाली हिसाब किताब जैसे अभी है, अभी आया कि उर्स कुल करवाएंगे, सबको दावत देंगे। एक आदमी मरा है रईस भाई का, हाँ, तो उसमें सबको हम दावत देंगे। तो हमको भी कहा कि घर भर का दावत देंगे, तुम्हारा खाना भी लेके आइए। तो एक रस्म हमारा चल चुका है, 40वां हो या 20वां हो या 10वां हो, जो भी हो, जो करता है 2 ही दिन पर 3 दिन पर करता है, हाँ, तो एक रस्म बना लिया है। अब इस पे कानून सब फेल है। देखा सुतमत यो सुने के बाद वो देखे के बाद तो नाक बजे लगा था। कहाँ ढकाता थकान हो गई, लगा था काम करके नहीं, उन्होंने के सुना कि लोग सुना करता का कहता का तो हम लोग आदमी देखा तो पहले ख्याल रखे तब हम बीड़ी पिए लगा, अब सोचा जा जरूर से पड़ा अल्लाह मसल्ला से योजना मौलाना जैसे जैसे अब कहा कि हम उर्स कराएंगे, तो नाम से एक उर्स है, दूसरे नाम में फातिहा करते हैं, हाँ, तीसरे में मिलादुन नबी कहते हैं। तो सीरत पाक का बयान होता है, ये तो ठीक है, हाँ, फातिहा भी ठीक है, सीरतुन नबी भी ठीक है, उर्स भी ठीक है। लेकिन किस लिए करते हैं कि लोग इसाले सवाब उस मुर्दे को पहुँचे, हाँ। तो उसका बेहतरीन ढंग तो यही है कि गरीबों को खिलाया जाए, गरीबों को खिलाया जाए, है कि नहीं? और यही असल है। आया है बाहर आए, दिन भर रात भर बाहर आस्ते बतिया यही में कुल काम करोगे और देवे ना करा। बाद में बात कर जाता था, ऐसे ही हम आज तक करेंगे, क्या बता रहे न रह जो बाहर रहे दिन कहाँ जन हम फिर भुला गए। नहीं, तो ये गरीबों को हक है। तो जमाना हो गया पढ़े हुए सुने अमल की चीज़ था कि जैसे किसी के घर आदमी मौत हो गई, तो मौत हो गई तो उस मुर्दे के लिए पहले ही दफन करने से पहले खैरात जगात उसके नाम से करना, लोगों को बांटना देना, ताकि बताया जाता है कि कब्र में पहला रात जो है बड़ी ही दुश्वार रात होती है, बड़ी ही खतरनाक, बड़ी डरावना, चाहे जो भी हो, कि पहली रात बड़ी सख्त होती है। तो पहले से खैरात जगात कर दे दफन करने से पहले। तो ये तो आदमी करता नहीं है, इल्म नहीं है, जो रवाज चल गई ताकि मुर्दे को कब्र में आसानी हो। अगर मान लो कि गरीब आदमी है तो उसका कहाँ से होगा, है ना?
तो हमने बताया भी आप लोगों को, शायद सब नहीं सुना हो। हमने कहा कि भाई देखो उसके लिए 2 रिकात 2 रिकात 4 रिकात पढ़ो, कि नियत बांध करके सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ो, 10 मरतबा अलहाको मुत्तका पढ़ो और 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो। 1 रिकात बनाओ और दूसरी रिकात में भी यही, और फिर सलाम फेरने के बाद जो है अब हाथ उठा करके दुआ करो और इसका सवाब जो है तो खैरात ज़कात के बराबर ही हो जाता है, ताकि मुर्दे को आसानी हो। हाँ, तो इसको तो कोई नहीं करता है, रोना पीटना धोना सब लगाया है। अब मुर्दा जाए तो जो किया है पाएगा। और हम मोहब्बत भी जताते हैं कि झूठा मोहब्बत हुआ ना। हाँ? रो करके आंसू बहा करके क्या करेंगे? और सरकार मना किए हैं आंसू ना बहाओ, गम है गम मनाओ। लेकिन चूँकि हो सकता है भाई इसमें बहुत किस्म के लोग हैं, किसी को बर्दाश्त होगा किसी को नहीं भी होगा, आंसू निकल ही जाएगा। हाँ, सब्र करने के लिए बताया गया। तो ये चीज़ आदमी छोड़ दिया, ले जाएगा सिर्फ जनाजा पढ़ेगा, ले आकर के दफन कर देगा। और दफन करके बहुत तो हैं वहाबी के क्या सब फिरके हैं कि नहीं हो गया, जनाजे में तो सब दुआ हो ही गया। तो है जनाजे में भाई अल्लाह मग़फ़िर लना मैयतना शाहिदना गायबना सगीरना कबीरना तो हो ही गया। हाँ, दुआ हो ही जाता है। लेकिन इतने से तो नहीं होता है, खैरात ज़कात भी बनाया गया है। और लोगों को पहले हम लोग छोटे थे ना तो देखे कि चना गेहूँ चावल दाल सब कब्र पे जाता था, और गरीब आदमी जो उतना था ना उधर लाइन लगा के बैठा रहता था। हाँ, तब दफन करने से पहले सबको बांट दिया जाता था, वो लोग ले ले खुशी खुशी अपना चला गया, है ना। अब दफन किया जाता था, लेकिन अब उसको तो छोड़ दिया। हाँ, वो सब नया स्टाइल में हो गया। कहाँ भेजे कितना आदमी निकाल के भेज देना, चावल दाल मदरसा में नहीं, पैसा रुपया हाँ थोड़ा बहुत भेज। अब क्या होता ना, मिलादुन नबी कराओ। हाँ, अब जो थोड़ा सा सीरत बयान कर लिए, ये साले सवाब हो गया, पहुँचा दो। ये चीज़ है मुर्दे के लिए। तो जितना हम गरीब का हक है उसको अब हमारी रवाज बन गई है कि आम आदमी को दियादी को भोज खिलाओ। ये हिंदुओं में था, कच्ची पक्की वो लोग बनवा करके बाभन को 500 खिलाएगा, बिरादरी खिलाते थे। अब वो चीज़ अब हम लोगों में आ गया है। अगर नहीं करोगे तो टोकारा देते रहेंगे, किसका बाप मर गया कुछ नहीं किया। हाँ, तुम्हारा बाप का बख्शाइश नहीं होगा। हाँ, तो गरीब का हक जो है हम अब खुद खा रहे हैं, है ना। ये खुशी का चीज़ तो नहीं है। तो गरीब का हक है, गरीब को देंगे तो उसका सारे सवाब जो है पहुंच जाएगा वहाँ, क्योंकि उसी के नाम से हम कर रहे हैं। तो ये सब दब चुका है, इसी को हम उठाना चाहते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को उठाएं और अपने मन को दूसरे का मन में हिसाब नहीं। हाँ, जिसे हकीका है तो हकीका का भी यही हिसाब है। अभी चाबी नहीं खे बाहर ज्यादा गुस्सा होगा, रुक दे दो, लड़का खड़ा रही। हकीका का भी यही हिसाब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीका किए। लेकिन हकीका में हमने किताब में देखा कि लिखा जा रहा है
लिखा गया है कि बच्चे की बदन की ज़कात, तो बच्चे की बदन की ज़कात कौन खाए? सब आदमी। ज़कात तो भाई गरीब आदमी को दिया जाता है ना। हाँ, तो अब यहाँ हो गया है भाई, बड़का का तो थोड़ा मुर्गा का अच्छा नहीं खिलागा। हाँ, खस्सी का बना दो। आई तक खस्सी का हो ही मलबिन का जीभ से पानी गिरता। हाँ, तो हकीका का चीज जौन बा अभी में खस्सी का गोश्त मिलता है, तो ओके राज करने कि सब खाएगा ना। ऐसे भी गरीब का तो खाना मदरसे में ही लोग खाता ही है। हाँ, पैसा जो आता है, आदमी खराज जगात करता है तो पैसा देता है मदरसे के लिए, गरीब लड़का लोग खाएगा पिएगा। हाँ, तो अब ये लोग जो हेड मदरस हैं पैसा उठा करके 10 लड़कों को बुलाएंगे, गरीब वालों को जो फ्री खाते हैं, उनके हाथ में दे देंगे, कहें कि ये सब तुम्हारा पैसा है, अगर इजाज़त हो तो तुम मुझे दे दो, हम संभाल के रखेंगे। अच्छा भाई, दे दिया कि हाँ मौलाना साहब हम नहीं रख पाएंगे, बच्चा है, सबका खर्च बच्चा तो है ही है, कहाँ से रहेगा। और फिर अब कहते हैं कि अगर तुम लोगों का इजाज़त हो तो इसमें से मास्टर का भी तनख्वाह दे दें। अब कब नहीं कहेगा लड़का। हाँ, अच्छा दे दो। सदके का माल आया, खस्सी आया, तो अब वो लोग कहते हैं कि कानून अपना बना के रखे हैं खाने पीने का, दूसरा कानून में तो फेल हो जाएंगे, लेकिन इस कानून में आगे हैं कि बाबू ये तो है तुम लोगों का खुराक। हाँ, तुम लोगों का हक है, अगर तुम लोग हम लोग को दावत दोगे तो हम लोग भी खा सकते हैं, ऐसा है ना। तो अब खाने का चीज़ है, तब बेचारा दावत करता, आप कैसे कहे मास्टर हैं, नहीं तो नाराज़ हो जी हैं। तो इस किस्म से चल रहा है, खा रहे हैं, लेकिन है ये गरीब का। इजाज़त क्यों मांग रहे हो भाई, दावत क्यों मांग रहे हो? अगर वो अपने से खुद कहता कि ठीक है, हाँ जी भरे तो मौलाना साहब आपका भी दावत रहेगा, खा लीजिएगा, लेकिन वो तो भाई अब डर का एक बात न हो गया। तो इस तरीके से हमारा रवाज चल गया है। हकीके का भी वही हिसाब है। हाँ, उसका दुआ है कि खाल के बराबर खाल, बाल के बराबर रोआ है ना, बाल है, बाल के बराबर बाल, हड्डी के बराबर हड्डी, गोश्त के बराबर गोश्त, खून के बदला खून। हाँ, ज़कात है। अब ज़कात कौन खाएगा भाई? तो गरीब आदमी का हुआ ना। हाँ, तो अपने बदन का ज़कात उसने निकाला, उसके बदले में खस्सी दिया कि बाल के बराबर बाल के बदला बाल, खाल के बदला खाल। हाँ, और खाल तो हो ही गया। हाँ, गोश्त के बदला गोश्त, हड्डी के बदला हड्डी, खून के बदला खून। ज़कात निकल गई इसकी बदन की। अब वो ज़कात जो है सब लोग खा रहे हैं। किसको खाना चाहिए? गरीब को ना। तो हम लोगों में सिस्टम ये चल चुका है, शायद इन लोगों में पता नहीं कैसे होता होगा, कहाँ से कि भाई ना आँख है ना कान है। तो कानून जो है ख़राब हो चुकी है। तो पहले सबसे पहले है कि हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें और इस मन को शरीयत में बांधे, है ना। सबसे पहली ज़रूरत है, आम और ख़ास सबका। अब सुधार की बात आ गई कि नहीं, जो शरीयत कहता है, जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की कानून कह रहा है, तो हम इस पे चाहे जो भी हो अटल रहेंगे। तो अब जब अटल रहेंगे तो एक माहौल बनती जाएगी। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में बनता गया। हाँ, तो वो गलतियाँ अब कोई नहीं कर रहा था, है कि नहीं। अब वो चीज़ धीरे धीरे शरीयत जो है तबीयत में बदलते अब मौलाना लोग भी बदल गए। अगर हमारे आलिम जो है
इस पे अटल होते तो ये जो है सही रहता है। लेकिन हमारे आलिम ही गांधी बाबा के पुजारी बड़े चोर निकले, मेरे देश को लुटाए बड़े चोर निकले, घूसखोर निकले। तो ये हमारी मौलिम जो आलिम हैं, जो बानी मबानी हैं, उसमें खुरफात हो गई, जिससे कई ठो तबका निकल गया, बन गया। शरीयत तो एक ही है, लेकिन कई किस्म से बातें निकल गई, कई किस्म से हो गया हिसाब किताब, जिसके हिसाब से आम पब्लिक पिस गया इसमें। तो आम पब्लिक को तो भी खाना पीना जीना है, हाँ? मौलाना साहब से डरता है, हाँ? कि नहीं भाई आलिम हैं, जानकार हैं, इल्म जानते हैं, इल्म पढ़े हैं, हाँ, हमको कायदा कानून बताएंगे। अब इसी में बहुत सारी टूटते टूट गया है। लेकिन फिर हम इसको चाहते हैं, हमारी बिरादरी तो नहीं है, तुम लोग तो भाई जानते हैं कि एक में दो बढ़ाने वाली है। लेकिन यहाँ जितने मर्द आए हैं, सुन रहे हैं, हाँ, इस बात पे अमल करें और इंशाअल्लाह कहें और उसको बदली करें, तो फिर एक निज़ाम बन जाएगी। तो जो देखेगा उसमें आ जाएगा, जो देखेगा नहीं ये कायदा कर, हाँ, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के रसूल ने जो बताया उसके खिलाफ है। तो धीरे धीरे एक हमारी माहौल जब बन जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर रास्ता बन जाएगा। इसलिए हम ये सब चीज़ें बयान कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इस चीज़ को जो बन चुकी है हम लोगों का, जिससे हम लोग बिगड़ चुके हैं, हाँ, उसको तोड़ दिया जाए और फिर से शरीयत को कायम किया जाए। और शरीयत के बाद फिर हमने बताया भी है कि अब इस मन को और कंट्रोल करने के लिए, इसमें और लज्जत लाने के लिए, भाई अभी तो सब बिन देखे सामान है, अब इसके बाद फिर देखने वाला सामान है। उसी चीज़ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो एक पे आना पड़ेगा, जो हमने बता चुका है कि भाई एक, हाँ, दोस्ती एक ही से होती है, मोहब्बत एक ही से होता है, दो से नहीं होता है। तो इसको भी हमने बयान कर चुके हैं कि नहीं अब एक से, तो मानो सबको। अभी तो शरीयत में सबको मानना है, अल्लाह भी, रसूल भी, तो सारे रसूल को मानते हैं, सारे किताबों को मानते हैं, सारे मलाइकों को मानते हैं। ये है, किसी में हम फ़र्क नहीं डालते हैं, सब अपने अपने जगह पे है। हाँ, अल्लाह ने उनको उस टाइम में भेजा, नबी थे, अल्लाह के नबी, जैसा माहौल था उस माहौल में अल्लाह ने भेजा, और वो माहौल जो है वो उस माहौल के हिसाब से काम हुआ। तो जो नबी का बात माना वो तो सही रहा, जो नबी का बात नहीं माना वो गलत हुआ, अल्लाह उसको सजा देगा। तो सब अपने अपने जगह में फायज हैं, सही हैं, अपने अपने ज़माने के हिसाब से अल्लाह ने उनको भेजा था। हाँ, जैसी माहौल थी उसी माहौल के तोड़ने के लिए भेजा गया। तो आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेकर के आए, इस किताब में पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सबका अहवाल लिख दिया गया। इनको ऐसी सज़ा मिली, इनको ऐसी सज़ा मिली, ये लोग वहाँ गए थे तो इनके ऊपर ये अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, ताकि हम लोगों को सब मालूम हो जाए। और लोगों में तो नहीं था, लेकिन इसमें कलम पाक में आ गया। और शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत सब कुछ इसमें आ गया, क्योंकि आखिरी जमा नबी हैं, अब इसके बाद नबी नहीं आएंगे। अब नायब रसूल जो हैं यही काम करते रहेंगे। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम तो भाई एक नंबर थे। तो उस वक्त के, उस ज़माने का भी हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमारे सारे सहाबा जो है सितारों के मानिंद हैं। इसमें किसी एक का इत्तबा करोगे तो 100% कामयाब रहोगे, 100% कामयाब रहोगे। तो एक का मतलब है ना कि एक से मोहब्बत, नाइब रसूल बनाना।
तो उस जमाने से लेकर के अब तक वो चल रहा है, क़यामत तक चलेगा। तो ये तो सबको मानना हो गया शरीयत में। अब उसके बाद और करीब करता है अल्लाह, तो अब कहता है कि एक से मोहब्बत। तो अब नाइब रसूल से मोहब्बत करना, रसूल से मोहब्बत हो गया, रसूल से मोहब्बत हुआ तो अल्लाह से मोहब्बत हुआ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह का माने मतलब यही हुआ, हाँ, कि तुम मुझे चाहते हो तो मेरे महबूब की पैरवी और मोहब्बत करो। तो अब सीढ़ी लगा है, हिसाब लगा है कि एक से मोहब्बत करो, तो जब देखेंगे जिससे उसी में मोहब्बत होगा। बिन देखे तो मोहब्बत होता नहीं। हाँ, नाम का आशिक कौन होता है? हाँ, का थोड़ा ऐसे शेर में है, मैं सजदा करूं, हाँ, तू सामने हो मैं सजदा करूं, तू सामने हो मैं सजदा करूं, और कुछ लुत्फ हो उस सजदे की, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरा नाम का सजदा कौन करे। मोहब्बत बिन देखे नहीं होती है। तो देख करके तो अल्लाह ने अपने महबूब को सामने कर दिया कि जो हमारे महबूब से मोहब्बत करेगा तो हमसे मोहब्बत हो गई, है ना। तो अब महबूब के महबूब सब हैं, सरकार ही के नूर से न हैं। अब जहाँ अल्लाह ताला किसी को उसका एजेंट बना दिया, हाँ, नाइब रसूल, अंग्रेजी में एजेंट कहते हैं, नाइब रसूल बना दिया, तो अब उसके यहाँ हर चीज़ दे दिया भाई। क्या कहते हैं, फनाफिल सेखी दी, तो फनाफिल सेखी में यही चीज़ मिला कि वो तरीक़त का अंदर का भी नज़र खुला हुआ है उसका, तो अंदर की भी बात बताएगा, बाहर का भी बात बताएगा, उसकी पहचान भी बताएगा, उसके दीदार भी बताएगा। हाँ, तो सारे कानून को तो पहले शरीयत है, इस कानून पे जब आएंगे तो उसको लेकर के फिर हम अब एक से मोहब्बत करना था। जब एक से मोहब्बत करेंगे तो यही चीज़ लेके आना, हाँ, तो हाजिर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, पीर एक बाप एक, हाँ, नहीं समझते हैं। तो हमको पढ़ाई होना चाहिए। एक आदमी हमारे पास आया था, तो उसका दूसरी बात यही हुई, और हाँ ये तो बात है, उसका पीर पर्दा कर चुके थे। हमने कि एक भी मंजिल, कोई भी मंजिल पाए हो तो नहीं, हमारे हजरत बोल रहे थे कि छिल्ला कर लो, हाँ, लेकिन हम इधर काम में उधर काम में उधर काम में फंस गए, तब तक वो पर्दा कर गए, हम एक भी छिल्ला नहीं कर पाए। हम भी देखो हम लोगों के यहाँ तो उसका उल्टा है, हाँ, छठी छिल्ला कुत्ता का पिल्ला। हाँ, अल्लाह रसूल याद करना चाहिए, फतकुरून याद करो कौन, हाँ, जिक्र करो कि छठी छिल्ला क्या है, कि चलो 21 दिन का छठी छिल्ला कर लिया, 41 दिन का कर लिया, बेचारा जिन्नात अपने काम में अपने अल्लाह अल्लाह करेंगे, उसको कैद कर लिया। हाँ, यही छिल्ला न है। हमजाद को कैद कर लिया, उससे काम करा रहे हैं, तो अपना मनमानी कराएंगे। अल्लाह रसूल का तो डर ख़त्म हो गया। मोमिन किसी को सताता नहीं, हाँ, मोमिन से किसी को क्या कहते हैं, तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। और दिल को भी पहली सबक होती है, किसी के ऐसा बोली ना बोलो कि उसका दिल में ठेस लगे, क्योंकि कुलूबुल मोमिनीन अर्शुल्लाह ताला, मोमिनों का दिल अल्लाह का घर होता है, अल्लाह का अर्श होता है, काबा होता है। तो कोई ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसी बोली ना हो ऐंठ करके कि किसी को दिल को ठेस लगे। हाँ, तो अब जो है आप ऐसे मुसीबत में, हमारा मरीज ही फंसा था, उसको तकलीफ बढ़ते जाए। हाँ, तब एक रोज देखा गया, तो हम पूछे कि कहाँ ऐसा हो रहा है, तो बताया क्या इसकी माँ बीमार थी, तो इसने उस वक्त डांट के बोला है। तो
اسی کا جو ہے سزا ہو رہا ہے. اور ایک آدمی ہے اپنے بھابھی کو بھی اس کا کیا نام ہے دل ٹوٹنے والی بات بولا ہے. اس کے بھی دل کو ٹھیس لگا ہے. تو اب سزا ختم نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم خود سہے، ایسی بولی نہ بولیں کہ کسی کے دل کو ٹھیس لگے. جسے غریب آدمی ہے، ہاں اس کو بھائی تو برابر غم میں ہے، اور اس کو ٹھیس کی بولی بول دیں، اس کے دل کو لگے، تو یہ تو بھائی رائے گا نہیں جاتا ہے. اللہ سب میں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو توڑے کس کو؟ اللہ کو، ہے نا. یہی سمجھنا بہت بڑی مشکل ہے. ہم نے سیدھا جان لیا کہ یہ نام ہے اور یہ آدمی ہے، اور اس کو ہم نیچے سے نیچے گراتے رہیں. نہیں، اس میں گراؤ تم نہیں، اس میں بھی وہ چیز ہے جو تم میں ہے. آل ان ون اینڈ ون ان آل. ہاں، رب میں سب ہے، سب میں رب ہے. اس چیز کو ہم شریعت اور طریقت دونوں میں، طریقت میں اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم خود بہت جھک کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. شریعت میں تو ہے کہ بھائی ایک تھپڑ کا ایک تھپڑ مارو، لیکن وہ کس کے مارا ہے کہ آج سے مارا ہے، اسی حساب سے تم ہی مارو. اگر اس سے زیادہ بڑھا کے مار دو گے اب تم ظالم ہو جاؤ گے، ہے نا. ایک تھپڑ اس نے مار دیا ہے تو اسی اتنے ہی زور سے مارو، بدلہ پورا ہو جائے گا. اگر زور سے مار دیا تو پہلے وہ ظالم تھا، جب زور سے مار دیا تو اب تم ظالم ہو گئے، بوجھا لے لیا نا. آج طریقت کہتا ہے کہ درگزر کرو، معاف کر دو، اور اچھا ہے. تو ایسی حساب ہے طریقت کا. اس میں ایک درجہ اور بڑھ کے ہے کہ چلو ہم سہ لیا، معاف کر دیا. بڑی اس کے بھیتر میں راج ہے. انشاءاللہ جب اس لائق آدمی ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا، نہ جو ہوشیار ہوگا سمجھ جائے گا. ہاں، اس میں تو ہوتا ہے تیز بننا، اپنے دماغ کو تیز دوڑانا. تو اس طریقے سے ہم کو رہنا جینا ہے کہ ہم اپنے پہلی والی قانون کو جو اللہ کے رسول کے خلاف ہے اس کو توڑے، اور اپنے آپ کو اب ایک تو آپ لوگ ایک گروپ ہو ہی گئے ہیں اللہ کے رحمت سے، تو اب پھر سے نیا سے جوڑ لیجئے. کوئی کہاں کوئی کہاں بھائی قید تھا، تو اس میں سے نکل کر کے ایک جگہ اللہ نے پھر کر دیا اور ایک موقع دیا ہے. اس موقع کو پھر گنوانا نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس پہ آمادہ ہو جائیں گے تو یہ قانون اللہ کی شریعت والی بن جائے گی. آگے کچھ بھلا بھٹکے گا تو آپ لوگوں میں عالم ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. اگر اس میں بھی حساب نہیں ہے تو پھر جو اللہ نے ہم کو عقل شعور دیا ہے، علم دیا، ہم بھی بتائیں گے نا. تو نئے لوگ آئے تھے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ چھوٹ چکا تھا ہر چیز، ان کے دماغ کو باندھ دیا گیا تھا. اب وہ جانتے نہیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کیے ہیں. جب دماغ کھلا تو معلوم ہوا کہ ہم قید تھے اتنے دن سے، اپنے گھر میں نہیں گئے ہیں. تو اس لیے ہم تھوڑا سا بیان کیے تاکہ ہم سدھر جائیں، اپنا راستہ صحیح کر لیں. سب سے بڑی چیز ہے. تو سب سے بڑی میں ہم نے بتایا کہ ہماری من، اب ہمارا من کرتا ہے موبائل کو ہم لے لیں گے، تو اب ہم ایسے نہیں ملا تو چرا لیے، اور اس سے بھی ہمارا طاقت بڑی ہے تو ہم زبردستی چھین لیے، ہے نا. یہ من کا بات ہے نا، کہ ہمارا جو من میں آیا کیا. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے کہ نہیں، اگر تھوڑا دیر کے لیے ضرورت ہے تو اس سے لے لو کہ بھائی ہم کو تھوڑا ضرورت ہے دیجیے. اگر نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی اس کو برا بھی مت مانو، اس کا جو چیز ہے
न उससे दुश्मनी का ख्याल रखो। खुद पैदा करो, हाँ, मेहनत करो कि अल्लाह ताला तुमको भी वो चीज़ दे दे, फिर पैसा मिलेगा, खरीद लेंगे, है ना। ऐसा हिसाब है। अब उससे नाराज़ क्यों हो, उसका चीज़ दे न दे। लेकिन अब हमारों में तो यही है, हाँ हमारा ज़रूरत पड़ा, इन्हों का ज़रूरत पड़ी, हाँ नहीं, ये हमारी जाहिलियत है। अल्लाह रोकता है हम खुद पैदा करें उसको, और पैदा करके खरीद लें उसको, या दे दिया तो उसकी मेहरबानी है। फिर उसका सामान से थोड़ा काम कर लिया, फिर उसको वापस कर दिया कि भाई शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, अच्छी है, अल्लाह आपको मदद करे। तो ये सब हम लोगों का टूट चुका है, इस चीज़ को हमको लाना है। तो हमारी बिरादरी तो यही औरत लोग है, हाँ, लेकिन अल्लाह ने दिया है इन बिरादरी को। तो हम ये सब अब हम इन्हीं लोगों को कहें भाई, जोग दर जोग तो यही लोग ना हैं। तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के भी लिए भेजा था। तो इन लोगों में बयान कर रहा हूँ कि फिर से एक नया मोड़ लीजिए आप लोग। क्या बोलते हैं? इंशाअल्लाह जरूर। इंशाअल्लाह। बस शरीयत को तबीयत में नहीं बदलना है, शरीयत को अपने तबीयत में नहीं बदलना है। अल्लाह को उरूज देना है, नहीं अल्लाह हमारा बड़ा है, हम उसकी बंदगी करेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, उसी पे चलेंगे। इंशाअल्लाह फिर इसके बारे में आगे फिर बात होगा। तो दुआ करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबी इलाहुल आलमीन। जो कुछ हम लोग कहे सुने, उसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ या गलती बात हमारी जुबान से निकल गई तो माफ़ फरमा, और ये लोग भी माफ़ करें। अल्लाह सही सही बात बताने के, तो हक बात करने की तौफीक अता फरमा, और इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारी इल्म को बढ़ा दे, हमारे हमको और ज़्यादा इल्म अता फरमा। इसका मतलब यही है कि हमारे इल्म को बढ़ा, ताकि तेरी मार्फत, तेरी कुरान, तेरी कानून हमको सही सही समझ में आए और उस पर हम अमल करें। तो इल्म ज़रूरी है ना। इल्म सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि इल्म मेरा हथियार है, और जोहद मेरा पेशा है। तो उसके बारे में मालूम होगा तब ना हम जद्दोजहद करेंगे। उसके बारे में इल्म नहीं तो हम क्या जद्दोजहद करेंगे। इल्म हथियार है, तो इल्म भी होना ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी आप लोग पढ़ाएं, सिखाएं, और अपने घर में भी माहौल बनाएं कि अल्लाह ताला उस रास्ते पे बच्चे सीख करके घर से ट्रेन होकर के तब फिर मदरसे में या कहीं जाए। वाफ़न्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या हय्यु या क़य्यूम बहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वइज़्ज़ु नफ़्सी बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि व अलैहि मजनीन। सलातो व सलाम या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम या हबीबल्लाह, सलातो व सलाम या खैर खल्क़िल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा